Well, ladies and gentlemen, now moving forward with the next technical session. Quality control is very, very important for any industry, and paint and powder coating industry is no different. So our next technical presentation is around quality control. The topic for the next technical presentation is enhancing quality control in powder coating, the importance of accurate color measurement. I would now invite on stage the speaker for this session, Mr. Deepesh Sachdev from Smart Color Solutions. I'd request Mr. Deepesh Sachdev to please join me up the stage. So he's all set to join us up the stage, and we will have his presentation. Ladies and gentlemen, let's welcome him with a huge round of applause. Come on. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Deepesh Sachdev. गुड आफ्टरनून एवरीवन. पीछे तक लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके. सो जैसा कि आपको बताया है, आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, एनहांसिंग क्वालिटी कंट्रोल इन पाउडर कोटिंग. पाउडर कोटिंग पेंट सभी बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, बट कई बार कलर मैच नहीं हो पाता है. प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कलर मीट नहीं होगा तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं. So to enhancing color quality control, we have testing equipment for that. We have basically three type of products. One is coating thickness gauge, second one is colorimeter, spectrophotometer, and third one is gloss meter. Because तीनों का अपना important है. कलर के साथ साथ appearance भी product की proper होनी चाहिए, shining level, gloss level. So we are going to discuss about this. So what is color? Can anybody tell me about this? What is color? Color is an attribute of a product which we sense through our brain using our eyes. So we can define color as, इसको इधर करना है, उधर करना है. So this is property possessed by an object. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. सो प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सेंसेशन टू आइज़. हमारी आइज़ को डिफरेंट सेंसेशन मिलते हैं, और उसका रिज़ल्ट जो हम देखते हैं वो हमें कलर की तरह सेंस होता है. किधर ऑब्जेक्ट, किस तरफ ऑब्जेक्ट इधर नेक्स्ट, ये प्रीवियस नहीं, किस डायरेक्शन, ये नेक्स्ट होगा, ये प्रीवियस डायरेक्शन की तरफ. Okay, so here we have the two type of theories. One is RGB. Everyone knows this. Red, blue, green. These three are primary colors. इनके combination से सारे color produce होते हैं, और इनको अगर बराबर quantity में mix किया जाए तो white color produce होता है. So this is additive color theory, and another one is subtractive color theory, जिसके primaries होते हैं CMYK, cyan, magenta, yellow and black. ओके, इन कलर को मिला देते हैं तो आपका ब्लैक बनता है, सियान, मेजेंटा और येलो को. सो इन आवर रियल वर्ल्ड वेयर वी डू ऑल टाइप ऑफ कलरेशन प्रोसेस, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, जहाँ पर भी पिगमेंट्स की या कलर की मिक्सिंग होती है, वहाँ पर हमारी सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी यूज़ होती है. सो व्हाई टू मेज़र कलर? कलर को मेज़र करने की क्या ज़रूरत है? कलर को मेज़र इसीलिए करना है क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है. इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट एनीथिंग, इट शुड बी इन नंबर्स. वी कैन कम्युनिकेट एनीथिंग इन नंबर्स वेरी प्रिसाइजली. सो in case if I want to communicate you weight, so I have one electronic balance. If I measure that particular property of that product, let's say weight, I can communicate it's a 10 kg, 12 kg or whatever it is, so that there should be no variation. So both the parties are having that electronic meter, that is called electronic balance. If we want to communicate color by numbers, we should have spectrophotometer, so that we can communicate these things, values in form of numbers. So if you do one small exercise, you can realize that we have certain limitations. You can see there are 4 colors on a screen. If you take out pen from your pocket, close one eye like this
and put your pen in between these two blocks, color blocks. Between two color blocks, you will see there is no difference between these two adjacent colors. Same way, you put between second and third block, put your pen like this, so that it should be blocked. So there is no difference between second and third block. Same way between third and fourth block. Please do it. It's a very small thing. Look at the screen. Put between first and second block, it should be blocked by your pen. You will see there is no difference between first and second. If you remove your pen, you can see there is a lot of difference between two. It's visible. So difference in colors can look the same. So what you have to do whenever you are going to compare two colors, you should those two colors adjacent side by side, so you can see the difference clearly. Reason being, we have poor color memory. We cannot memorize the color. That's why we want to keep every time whenever we make a new batch, we want to keep standard adjacent to the sample. So here is one more example of after image. If you stare the center point of this leaf, just stare for a minute. So when I remove this, you see after image. So what happens? आप लगातार एक कलर को देखते रहते हैं तो आपकी आंखों के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो थक जाता है, स्ट्रेस लेवल में आ जाता है. When that image is removed, नेगेटिव इमेज आपके ब्रेन पर प्रोड्यूस होती है. अगर आपको ध्यान हो, पुराने टाइम में जब हम ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी देखते थे, जो CRT वाले होते थे, लाइट चली जाती तो काफ़ी देर तक वही इमेज दिखती रहती थी, बिकॉज हमारी आंखें थक जाती थी, स्ट्रेस लेवल हो जाता था. सो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं. तो ह्यूमन बीइंग कलर को बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, उसको याद नहीं रख सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई वी रिक्वायर मीटर. ये एक और एक्सपेरिमेंट है. आप इसमें अगर देखेंगे कि आपको दो तरह के येलो कलर दिख रहे हैं या ये दो तरह के ब्लू कलर दिख रहे हैं, उनमें आपको डिफरेंस दिख रहा है. अगर आप देखेंगे इसको, नेक्स्ट इमेज में दिखाता हूँ मैं, ये दोनों कलर सेम है. ये मैंने बीच में से बार हटा दी तो ये ब्लू आपको सेम दिख रहा है, और पहले आप देखेंगे तो इनमें डिफरेंस दिख रहा था. तो सराउंडिंग का बड़ा इफेक्ट पड़ता है. जब आप कोई कलर को कंपेयर करते हैं तो वो किस बैकग्राउंड पे देख रहे हैं. अगर वाइट पेपर पे देख रहे हैं तो डिफरेंट दिखेगा, ब्लैक पे देख रहे हैं तो डिफरेंट दिखेगा. इसीलिए हम एक न्यूट्रल कलर यूज़ करते हैं. वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ग्रे कलर, जो हम लाइट बॉक्स या कलर मैचिंग कैबिनेट यूज़ करते हैं, जिसमें हम शेड देखते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, उसमें आपका नेचुरल ग्रे कलर होता है. अगर आप कोई लाल पीला हरा नीला बैकग्राउंड देख रहे हैं तो आपको कलर की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है. सो दिस इज बैकग्राउंड इफेक्ट. अब आप इस कलर को मेमोराइज कर लीजिए. आप लोगों का टेस्ट हो रहा है. प्लीज़ मेमोराइज दिस कलर. इसको मेमोराइज कर लीजिए. मैं इस कलर को चेंज करने वाला हूँ. अगला कलर इससे सेम है, लाइट है, डार्क है, डिफरेंट है, थोड़ा बताइएगा. मैंने दिखा दिया आपको. सो ये आपका फर्स्ट कलर था, आपने मेमोराइज कर लिया. ये मैंने हटा दिया. आपको अभी भी लगता है कि आपको याद है. ये मैं दूसरा कलर रिप्रोड्यूस किया. अब आपको लग रहा है बिल्कुल सेम है. ये फर्स्ट कलर ये था, तो आप पहले कलर को याद नहीं रख पाए. तो कलर को याद रख नहीं सकते हैं आप. दिस इज लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, पुअर कलर मेमोरी. इसमें आप रीड कर पा रहे हैं, कुछ नंबर्स आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इसके अंदर कि फर्स्ट इसमें क्या लिखा है और सेकंड में क्या लिखा है. सेकंड में कोई बता पाएगा? तो हमारी कलर मेमोरी कैसी है हम देख सकते हैं. हम कितना बढ़िया कलर को पढ़ सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं. तो ये काफ़ी सारे रीज़न हैं. और इसमें जो हम बोलते हैं कलर मैचिंग के वर्क में लेडीज़ को रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कलर मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कलर को वो ठीक से समझ पाते हैं. ये सारी चीज़ें बुक्स में डॉक्यूमेंटेड हैं कि 1 in every 13 मेल्स सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, कि वो कलर को सही से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं. तो कलर का काम हम लेडीज़ पे ही छोड़ देते हैं. हमें कोई सा भी कलर चल जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेडीज़ को स्पेशली कलर में बहुत अच्छी जजमेंट होती है, तो कलर के लिए हम उनसे सलाह ज़रूर लेते हैं. लेडीज़ में जो प्रॉब्लम होती है 1 in every 300 फीमेल्स.
सो कलर मैचिंग के काम में लेडीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। जितने भी, जैसे इंडिया से काफ़ी सारा टेक्सटाइल मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, तो गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में या मर्चेंटाइजिंग वर्क में लेडीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। गैप, वालमार्ट, टॉमी हिलफिगर, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो लेडीज़ को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनकी कलर्स की डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। सो अगला आता है लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट डिफरेंट टाइप की होती है। जब हम कलर मैचिंग की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस जगह डिस्प्ले होने जा रहा है। इंटीरियर में हो रहा है तो हम ट्यूबलाइट में मैच करेंगे, अगर एक्सटीरियर में हो रहा है तो डे लाइट में उसका एक्सपोजर होगा तो डे लाइट मैचिंग बोलेंगे, इंडस्ट्रियल के लिए अलग होगा। तो हर कंपनी की या हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कलर बनाना होता है। तो लाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लाइट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कलर व्यूइंग बूथ या कलर मैचिंग कैबिनेट आते हैं जिसमें अलग अलग लाइटिंग कंडीशन होती है। तो ये जैसे एक इमेज दिखाई गई है जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में किस तरह से बिहेव करती है उसके बारे में बताया गया है। सो दिस इमेज इन डे लाइट लुक लाइक दिस। इफ़ यू चेंज द लाइट सोर्स फ्रॉम डे लाइट टू फ्लोरोसेंट, इसकी आपको अपीयरेंस डिफरेंट होगी, कलर का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पर डे लाइट में आपको एक तरह से वार्म दिख रहा था, यहाँ पर कूल दिख रहा है, like that. So light also plays very important role in judging color और कलर मैचिंग। मान लीजिए आपने लेबोरेटरी में या प्रोडक्शन में कलर मैच करके दिया, डे लाइट में मैचिंग की, और जो अप्लाई करने वाला है उसका फाइनल प्रोडक्ट डे लाइट में चेक कर रहा है, चांसेस आर देयर कि कलर वुड मिसमैच। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटामेरिज्म, where two objects match under one particular lighting condition, but when we change the lighting condition it appears differently. That property is known as metamerism. So we should avoid this metameric pair. आपका कलर हर लाइट में मैच हो, उसका तरीका ये है कि आपके जो पिगमेंट्स यूज हुए हैं स्टैंडर्ड में जो सैंपल मिला है एंड वट एवर यू हैव प्रोड्यूस, बोथ आर बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग सेम पिगमेंट्स, देन यू विल गेट लीस्ट मेटामेरिक पेयर. सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल विच शोज़ कि एज के साथ साथ हमारी कलर इंटरप्रिटेशन जो है वो वीक होती जाती है. सो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि एक फेमस पेंटर है, उसकी कलर डेफिशिएंसी का बताया एज के साथ क्या फ़र्क पड़ा. सो ये यंग एज में इस तरह से पूरे कलरफुल पेंटिंग बनाता था और ये आपकी वही एल्डर एज में बनाने लगा. सो इसके बाद हम बात करते हैं ये सारे आपके फैक्टर से, जब भी हम कलर को जज करते हैं इन सब एरर से फ्री होना चाहिए. अगर हम स्ट्रेस में हैं तो सेम सही कलर को भी हम गलत जजमेंट दे सकते हैं. इफ़ वी आर इन गुड मूड, फेल कलर हो उसको भी हम ओके और पास कर सकते हैं. बीच में दूसरी स्क्रीन आ गई है. नेक्स्ट कर दीजिए. यहाँ से नहीं हो रही, उनको बोलिए. ओके. सो आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, कुछ पता लग रहा है? दिस इज स्लाइट मिक्स ऑफ एजुकेशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल, किस तरह से हम यूज़ करते हैं कलर मैचिंग. सो वी आर कमिंग टू द सेम स्क्रीन अगेन. So what is color? Again same thing. So why grass looks green? Because grass पर जो लाइट गिरी उसमें से उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की. लेट्स से डे लाइट गिरी. डे लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. 7 कलर्स उस पर गिरे. विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड. Out of this it has absorbed some of the colors and reflected one color, that is green color. That's why grass looks green. That is simple phenomena. सो कलर जो है ये 3 वेरिएबल सिस्टम से हमें दिखता है. कलर को, किसी भी प्रोडक्ट का कलर देखने के लिए हमें लाइट चाहिए, अंधेरे में हम कलर नहीं देख सकते हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर देखने के लिए हमें लाइट चाहिए. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. दूसरा, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका हमें कलर देखना है, वो आंखों के सामने हो. थर्ड थिंग, आइज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें कलर
दिखता है। सो लाइट जो होती है हम प्रिज्म से पास करते हैं, इट डिवाइड्स इनटू 7 कलर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है, वेवलेंथ के हिसाब से हम बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर अंडर विच वी सीज द कलर। अभी जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जैसे आपकी वाटर बॉटल है ट्रांसपेरेंट है, आप अक्रॉस द बॉटल देख सकते हैं। सेकंड, आपका ऑब्जेक्ट जो है पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ओपेक हो सकता है। तीसरा जो है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज ट्रांसमिशन, जैसे आप पर्दों में से देखते हैं थोड़ी सी लाइट क्रॉस हो रही है, फैल कर दिख रही है। चौथा आपका है रेगुलर ट्रांसमिशन, पूरा का पूरा आपका ट्रांसमिट हो रही है। सो डिफरेंट तरीके के आपके लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, ग्लॉसी फिनिश भी हो सकती है, मैट फिनिश भी हो सकती है। ग्लॉस फिनिश में सारी को आपको एक ही डायरेक्शन में चमक मिलेगी। मैट फिनिश में आपकी लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग अलग एंगल पे, तो वो आपको चमकता हुआ या शाइनिंग नहीं दिखेगा। सो इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए ग्लॉस मीटर प्रोडक्ट आता है। हम मीटर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम क्वांटिफाई कर सकें, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें, कंसिस्टेंसी। सो ये एक लाइट बॉक्स का एग्जांपल है जिसके अंदर अलग अलग लाइटिंग कंडीशन होती हैं। डे लाइट जिसको D65 बोलते हैं, इनकंडेंसेंट ए लाइट, मोमबत्ती की लाइट जो कि वार्म टाइप्स की अपीयरेंस देती हैं। सो अलग अलग तरीके की लाइट होती हैं। मेटामेरिज्म का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। One pair of color matches under one particular lighting condition, but when we changes the lighting condition it looks different, that is called metamerism. Then ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है। देन ऑब्जर्वर। सो अब हम बात करते हैं मीटर की, सीधा हम मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि मीटर क्या है, आपको कलर को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। सो उसमें हमारा विजुअल इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाता है। एक तरह से हम डिजिटली उसको कन्वर्ट कर दिया, हमने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, नो नीड टू मेमोराइज। सो इसका यूज़ क्या होता है, जो प्रोडक्ट कहलाता है मीटर जो इसके लिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो प्रिसाइज लेवल का इक्विपमेंट होता है। जैसे हमारे आधार पे फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, तो किसी एक का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। सेम वे से जब हम किसी कलर को मेज़र करते हैं तो उसका एक तरह से फिंगरप्रिंट जनरेट हो जाता है यूजिंग दिस कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उस फिंगरप्रिंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस डेटा। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट का डेटा है या रेटिना का डेटा है, इस तरह से वो यूनिक डेटा उस कलर का हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उससे वैल्यूज़ जनरेट होती हैं LAB। L स्टैंड्स फॉर लाइट डार्क, A स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन, B स्टैंड्स फॉर येलो ब्लू। तो जैसे ये रेड ऑब्जेक्ट है, उसका ये फिंगरप्रिंट जनरेट हो गया, स्पेक्ट्रल ग्राफ भी कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये आपके रिफ्लेक्टेंस कर्व बताए हैं। इस तरफ आपका रिफ्लेक्टेंस है परसेंटेज में, दूसरी तरफ आपका वेवलेंथ रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर। सो जैसे हम कलर को इसको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट पोर्शन में, एक तरफ वायलेट आ गया, एक तरफ रेड आ गया, बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 10-10 नैनोमीटर के डिफरेंस पे। तो हमने प्रोडक्ट को मेज़र किया तो मीटर से कुछ इस तरह का डेटा आया और जिसको हमने नंबर्स में कैप्चर कर लिया। तो हम नंबर टू नंबर जब कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये रेड कलर का ग्राफ है। अगर हम रेड ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं तो वो रेड ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें वो रेड कलर में पीक आएगी, जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो पीक में आएगा। तो ये आपका येलो, ऑरेंज, रेड रीजन में पीक आ रहा है, तो ये रेड कलर है। इसी तरीके से ग्रीन कलर का बीच में आएगा, और आप देखेंगे ब्लू कलर का सबसे लेफ्ट रीजन में आएगा, जो ब्लू रीजन है। सबसे नीचे डार्क कलर का आएगा, ब्लैक कलर का, और ऊपर वाइट कलर का। तो अगर किसी में ऑप्टिकल ब्राइटनर है तो यूवी रीजन बोल रहे हैं आप या वायलेट रीजन बोल रहे हैं, उसमें पीक आएगा 100 से ऊपर आएगा ये रिफ्लेक्टेंस। तो इस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे LAB वैल्यू, इस स्पेक्ट्रल ग्राफ से LAB वैल्यू जनरेट होती है मैथमेटिकली, जो मीटर जनरेट करके हमें देता है, और नंबर में हम बड़े आराम से बात कर सकते हैं। मीटर जो मेज़र करता है वो 40 पॉइंट पे डेटा मेज़र करता है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट स्कैन होता है तो हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे नाम के साथ एसोसिएट हो जाता है कि ये फिंगरप्रिंट इस पर्सन का है, तो बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाता है। सेम वे से जब ये जो स्पेक्ट्रल ग्राफ हमने मेज़र किया वो LAB वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। वो वैल्यूज़ हम किसी को भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें फिजिकल सैंपल भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी राल कार्ड, पेंटोन कार्ड, कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी को नंबर भी कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे XYZ नंबर का ये कलर बनाना है, तो वो आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है अगर उसके पास मीटर है। सिंपल एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट एनी ग्रॉसरी स्टोर एंड इफ वी से आई नीड 1 kg sugar, we do not carry our bag or something, you can say weight with us. We just communicate I need 1 kg sugar.
and he make it 1 kg and give it to us, बिकॉज हम सामने हम देख रहे हैं तो हम वापस घर लाकर तोलते नहीं हैं, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दोनों एंड पे स्केल होते हैं, कोई मटेरियल आए तो हम वज़न करते हैं। सेम वे से जब कलर प्रोडक्शन की बात आती है तो आपके कस्टमर के पास भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, ताकि वो क्वालिटी चेक कर ले बिफोर अप्लाइंग। आफ्टर एप्लीकेशन तो करेक्शन हो नहीं सकता है। सो दैट इज़ द थिंग। सो ये आपका स्केल है, इसको हम समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे किसी पर्सन को मुझे जज करना है, मेरा और किसी और का कंपैरिजन करना है, तो हम 3 पैरामीटर ले लेते हैं। एक तो हाइट हम देख लेंगे कि मेरी हाइट कितनी है और दूसरे पर्सन की हाइट कितनी है, तो हमने एक स्केल हाइट का बना लिया। सेम वे से जब हम कलर की बात करते हैं तो पहला स्केल हम बना लेते हैं लाइट डार्क का स्केल। वेन एवर वी कंपेयर टू कलर वी सी इट इज़ लाइटर और डार्कर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। सो इसको एल वैल्यू से डिनोट करते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लाइट डार्क स्केल। ओके, so L value is 0 means it's a black, jet black sort of color. L value 100 is it's the perfect white color. So L का scale 0 से लेकर 100 तक होता है। Then comes to A scale. A stands for apple. Apple is red. So A value जब भी आपकी पॉजिटिव है कलर आपका रेड होगा, और A वैल्यू नेगेटिव है मीन्स कलर आपका ग्रीन डायरेक्शन में होगा। जैसे आपकी बॉटल के ऊपर कैप लगी है, इसको लाइट मीडियम डार्क के स्केल पे आप क्या बोलेंगे कि ये मीडियम टाइप का कलर है, ना तो बहुत लाइट है ना बहुत डार्क है। ठीक है, सो इसकी एल वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट 50। आप जैसे इसमें देखेंगे चार्ट में तो सेंटर में जो है मीडियम कलर है। वर्टिकली अगर आप देखेंगे एल वैल्यू के स्केल पे, दिस इज 3 डायमेंशनल स्केल। ए स्केल में अगर आप देखेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रीन कलर है, कैप का कलर जो है ग्रीन है। और तीसरा स्केल बी फॉर बनाना, ये येलो ब्लू स्केल है। इस पर आप देखेंगे कि स्लाइटली आपको येलो दिख रहा है, बॉटल की कैप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ब्लूइश डायरेक्शन में नहीं है, येलोइश डायरेक्शन में। तो इसकी बी वैल्यू हल्की सी पॉजिटिव आएगी और ए वैल्यू माइनस में आएगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको उसी का एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। देन कम्स टू इसी के अलग अलग वर्जन है। सो इस तरह के मीटर्स आते हैं जो आपको कलर को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें जो भी चीज़ को मेज़र करना है वो फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना हो, कोई मार्किंग ना हो। सो वी कैन डू इट बाय मेजरिंग दिस। सो मीटर से ही आपका कलर डिफरेंस कैलकुलेट होके आ जाता है कि एल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। ए वैल्यू में डिफरेंस डेल्टा ए एंड बी वैल्यू में डिफरेंस डेल्टा ई। टोटल कलर डिफरेंस इज डेल्टा ई। सो डेल्टा ई शुड बी लेस देन 1। उससे नीचे हम अपनी आइज से कलर डिफरेंस जज नहीं कर सकते हैं। So it is used, these meters are used in various industries for which color is a very critical or important parameter: printing, packaging, ink, textile, automotive, every industry. Then coming to different type of geometry of the equipment, अलग अलग geometries होती हैं। हमारे पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में या कलर पेंट इंडस्ट्री में जो है डिफ्यूज 8 डिग्री ज्योमेट्री के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले पर हमने डेमो के लिए रखे भी हैं, आप इक्विपमेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट स्फेयर ज्योमेट्री इक्विपमेंट। इसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है, हमारी बाहर की लाइट का कोई रोल नहीं होता। जो मैंने कहा, जब हम कलर को देखते हैं तो हमें बाहर की लाइट किस लाइट में देख रहे हैं, प्लस हम अपनी आइज से देखते हैं। सो ये मीटर हमें रिप्लेस कर देता है एक तरह से। इसके अंदर इसका अपना लाइट सोर्स होता है, इसके अंदर इसके अपने सेंसर होते हैं, ये हमें नंबर में दे देता है और हम नंबर से नंबर कम्युनिकेट करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, किसी भी मीटर की बात करते हैं, उसी मीटर पे अगर वही प्रोडक्ट वो 3-4 बार मेज़र किया जाए तो इट शुड गिव सम सेम कंसिस्टेंट रीडिंग। सो ये हमारी 3 चीज़ें थी। अगर हम तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं, लाइटिंग कंडीशन हम कंट्रोल कर लेते हैं लाइट बॉक्स में, जो पर्सन देखकर जजमेंट दे रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं, उसकी आइज़ को हम चेक करवा लेते हैं। उसको चेक करने के लिए भी मीटर आते हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं। स्कोरिंग सॉफ्टवेयर मिल सकता है कि आपकी कलर को चेक करने की कितनी अच्छी एफिशिएंसी है, कलर डिस्क्रिमिनेशन पावर कितनी है, दैट यू कैन चेक। सो उसको चेक करने का ये किट आता है। वी प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ सर्विस आल्सो। दोज पर्सन हु वांट टू चेक देयर आइज़, दे कैन गेट इट चेक थ्रू अस कि हमारी आइज़ परफेक्ट हैं। तो काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां जो एक्सपोर्ट का काम करती है वो अपने टेक्निकल स्टाफ की आइज़ ज़रूर चेक करवाती हैं कि कलर डेफिशिएंसी तो नहीं है। सो इस तरह का स्कोरिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपकी आइज़ का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपका कलर डिस्क्रिमिनेशन पावर कितना अच्छा है।
सो इक्विपमेंट कई तरीके के आते हैं, पोर्टेबल भी आते हैं और बेंच टॉप भी आते हैं। विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनी के भी आते हैं, लोकल भी होते हैं। सो ये कलर जैसे एवेलेट किया जा रहा है तो पीछे से लाइट आ रही है, चश्मा डाला हुआ है, कलरफुल कपड़े डाले हुए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब कलर को आप एवेलेट करते हैं। कलर एवेलेट करने के लिए बैकग्राउंड लाइट ना हो, ग्रे कलर का आपने सूट डाला हो, अंधेरे कमरे में आप कलर चेक करें। दीज आर द सम बेसिक थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स। ये पोर्टेबल टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है विच आर यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो यू नीड नॉट टू कट द पीस। कई बार क्लाइंट के सैंपल बड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि आप इसको डैमेज ना करें और कलर को मेज़र करें। सो दिस इज़ द all about this presentation. If you have any question, I can answer. Any questions? Okay. Lot of people are here, my customers also. So they are already using our system. Let me know in case if you need any help. I'll be available here till evening. Thank you. So please come and center. I have to say that it indeed was a much informative, educational as well as a practical presentation. He touched upon a lot of things like our color memory, metamorphism, and spectrophotometry. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. I would now invite on stage Mr. Dharampal Goswami from Durolac Paints Inc. to please felicitate our speaker. I request Mr. Dharampal Goswami from Durolac Paints to please join me up the stage in felicitating Mr. Deepesh Sachdev from Smart Color Solutions. Sir, thank you so much for your much informative presentation. And ladies and gentlemen, after the technical presentations, it is